हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स इट इज आई एम निदा योर एजुकेटर। और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। लेसन नंबर 2 आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ओके, बजट लाइन डिस्कस करेंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सी हियर व्हाट डू यू मीन बाय बजट लाइन। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं बजट लाइन इज व्हाट इट इज अ budget line. A consumer can purchase only those combination of goods which cost less than or equal to his income. यानी कि वो हम कंज्यूमर जो खरीद सकता है, या तो वो आपके क्या होगा, either cost equivalent to his income. Okay, it's a graphical presentation of all possible combinations of two goods that can be purchased with given income and prices. Okay, so this is the budget line. Okay, now let's see what's given in the book. I'm going to share it on the screen. Okay, the meaning of budget line. Okay, so here you can easily see in italics, budget line का एक graphical representation of all possible combinations of two goods which can be purchased with given income and prices. यानी कि आपको income जो given है उसी में ही आपको वो चीज combination दिखाना है different various goods के, आप कैसे खरीद सकते हैं with a given income such that the cost of each of these combinations is equal to the monetary income of the consumer. Okay, जितनी भी combination है आपको उसका इक्विवेलेंट दिखाना है, राइट? विद इन दैट इनकम, गिवन इनकम आपको होगी, उसी के अंदर आपको एक बजट में आपको उसी में खरीदना है सामान, एंड यू आर फुली सेटिस्फाइड ऑल्सो. ओके, सो बजट लाइन इज द लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स. मींस इट इज द पॉइंट which shows the various combinations of two commodities which the consumer consumes and which cost exactly his income. और उसका इक्विवेलेंट जो आएगा, दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, उसका जो आपका कॉस्ट होगा वो exactly his income होगा. ओके, तो बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्राइस लाइन, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, प्राइस इनकम लाइन और बजट कॉन्स्ट्रेंट लाइन. सो इट कैन बी आस्क्ड लाइक दिस ऑल्सो, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस लाइन? तब भी बजट लाइन का आपको यही डेफिनेशन देना है. ग्राफिकली मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. ओके, now let us understand the concept of budget line with the help of an example. For example, a consumer के पास 20 रुपए हैं, 20 rupees to his total income. Now he wants to consume two commodities. यहाँ पे भी two commodities होगी. For example, commodity X and commodity Y, and they both are priced at rupees 10 each. ठीक है, दोनों के प्राइस 10 रुपए हैं. Now the consumer has three options to spend his entire income. अब उसके पास ऑप्शन क्या है? या तो वो एक कमोडिटी ले ले, बाय टू कमोडिटीज, यानी कि 10 रुपीज एक्स, 10 रुपीज वाई, देन ही इज गेटिंग 20 रुपीज. पूरी उसकी इनकम उसमें ले ली गई. ओके, खर्च कर ली उसने. और हिज सेकेंड ऑप्शन इज, या तो वो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है दोनों कमोडिटीज एक्स की ले ली, क्योंकि 10 ईच है, तो एक्स के ले लिया, तो यानी वाई का कुछ नहीं लेगा वो, क्योंकि उसके 20 रुपीज स्पेंड हो गए, राइट? इधर ही कैन बाय 2 units ऑफ वाई, तो एक्स नहीं लेगा. देन थर्ड ऑप्शन उसके पास क्या, कंज्यूमर के पास, ही कैन बाय 1 unit ऑफ एक्स एंड द अदर यूनिट ऑफ वाई. तब 20-20 हो जाएगा, राइट? 10-10, सॉरी, 10-10 का मतलब एग्जैक्टली 20 रुपीज उसने खर्च कर दी. इट मीन्स पॉसिबल बंडल्स कैन बी टू commodities of X and zero of Y, zero of X and two commodities of Y, or one each of the commodities of X and Y. Okay, ये clear हो गया आपको? When all these three bundles are represented graphically, जब इन्हीं तीन bundles को हम इन combinations को दिखाते हैं एक point पे graphically, we get a downward sloping straight line. Okay, known as budget line. It is also known as the price line. I hope आपको ये meaning of budget line clear हो गया होगा. You just need to write here from the budget line, then it is known from by these names also. Examples देने की जरूरत नहीं है, अगर 2 मार्क का है, just make the definition, write the definition, and then you can just draw the diagram. अभी मैं आपको शो करती हूँ diagram भी. Okay, then budget set क्या होता है? Budget set is the set of all possible combinations of the two goods which a consumer can afford. यानी कि दो कॉम्बिनेशंस दिखाता है, एक कॉम्बिनेशन दिखाता है टू गुड्स का, which a consumer can get given his income and prices in the market. Okay, अब ये कैसे दिखाएंगे? In the addition to the three options, there are some more options available to the consumer within his income. यानी कि या तो वो अपनी entire income spend कर दे, या उसके अंदर ही सामान खरीद ले. For example, 20 का मेरा बजट था, मेरी income total 20 थी. Either I have the choice to spend the whole 20 rupees, or I can afford it also 18 rupees also, या 13 या 15 या 10 rupees में भी मैं काम चला सकती हूँ. Okay, so budget set वो होता है. Budget set includes all the bundles with the total income of rupees 20. That is, possible bundles of consumer bundles are can be both, वो खरीदे ही ना कुछ, और X का उसने कोई कमोडिटी एक्स नहीं खरीदी, ओनली वन उसने खरीद लिया. Y का 0 और 2, 1 और 0, 2 और 0, 1 और 1. कंज्यूमर इज अ
consumer's bundle is a quantitative combination of two goods which can be purchased by a consumer from his given income. यानी कि सिंपल आप बजट सेट समझ लिए. इसमें क्या है, आप एंटायर इनकम, बजट लाइन में डिफरेंस क्या होता है, बजट लाइन में आप एंटायर इनकम स्पेंड करते हो और बजट सेट में क्या होता है, सिंपली आप टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू इनकम. ठीक है, ये डिफरेंस हमेशा याद रखना. बजट लाइन में एग्जैक्टली आप पूरी इनकम उसकी खर्च कर देंगे, 20 रुपीज है, 20 रुपीज पूरे खर्च हो जाने. एंड इन केस ऑफ बजट सेट इट शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन हिज इनकम, दैट इज विद इन द इनकम. या तो एग्जैक्टली वो उतनी इनकम वो आपकी स्पेंड कर दे या वो इनकम से कम करे स्पेंड. आई होप इट्स क्लियर नाउ. ओके, नाउ बजट लाइन का क्या है, इसमें बजट लाइन का स्केड्यूल बनाया. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन टू कमोडिटीज एप्पल्स एंड बनानाज. ओके, एंड कॉम्बिनेशंस में इस तरह शो करूंगी अभी मैं आपको जब दिखाऊंगी डायग्राम. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, 4 रुपीज ईच आपका है एप्पल एंड बनाना इज ऑफ 2 रुपीज ईच एंड टोटल इनकम आपके पास 20 रुपीज, यानी कि 20 मुझे यहाँ पे स्पेंड करना ही करना है, राइट. तो 5 अगर मैं एप्पल्स ले लूंगी तो 5 into 4 इक्वल्स टू 20, इट मीन्स 0 बनानाज आई कैन टेक. देन 4, इफ आई एम टेकिंग 4 एप्पल्स देन आई हैव लेफ्ट मनी विद, दैट इज 2 into 2, दैट इज 20. यानी कि 4 अगर मैंने लिए एप्पल्स तो 4 into 4 16, 4 रुपीज मेरे पास है तो 2 into 2 दैट इज 2 बनानाज ईच आई कैन टेक. ओके, दैट इज अगेन कम्स द टोटल ऑफ 20. नाउ इफ सपोज मैंने एप्पल्स और कम कर दिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 एप्पल्स लिए तो 3 into 4 आपका आ गया 12. 12 के बाद कितना हुआ, दैट इज 8 रुपीज आपके पास बच जाते हैं. तो 4 into 2 दैट इज 20, अगेन 20 का मेरे पास आ गया. इट मीन्स 20 का टोटल होना चाहिए बजट लाइन में, राइट. देन एच आई एंड जे, सिमिलरली इसमें यही कॉम्बिनेशन दिखा गए हैं एंड टोटल इनकम आपकी 20 स्पेंड होना चाहिए, राइट. सो दैट इज द पर्पस ऑफ द बजट लाइन. बजट लाइन का मतलब है टोटल 20 रुपीज आपके जो है एग्जॉस्ट होने चाहिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, अ नंबर ऑफ एप्पल्स टेकन ऑन द एक्स एक्सिस. यहाँ पे एक्स एक्सिस है, पहले हमने डायग्राम बनाया वाई ओरिजिन एंड एक्स. तो एक्स एक्सिस पे मैंने एप्पल्स ले लिए एंड वाई एक्सिस बनानास. ओके, एट वन एक्सट्रीम पॉइंट ई. अब देखो पॉइंट ई पे क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट. कंज्यूमर कैन बाय 5 एप्पल्स बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम, यानी कि सिर्फ हमने क्या करे, एप्पल्स खरीदे हैं, राइट, एंड 0 बनानास. Got it? Entire income is spent on that one, purchasing apples. Okay, the other extreme point J. Now if you go to the J point, it is ये किसके पास जा रही है, Y के पास. It means we are consuming only bananas and no apples. Fine. So the other extreme point J shows that the entire income is spent only on bananas. In this way आप इसको explain कर सकते हैं बजट लाइन का, ठीक है. Between E and J, E ये है आपका पॉइंट और J आपका ये पॉइंट है. Between these two points we have I, H, G and F. Okay, so these points are also what they are showing that the entire income is spent, that is 20 rupees is spent, and the two combination of the two goods, that is bananas and apples, यहाँ पे बता रहे हैं. Okay. There are other combinations like F, G, H and I. By joining all these points, we get a straight line. अगर इन सबको join करेंगे तो straight line downward sloping में मुझे मिल जाएगी. And we get a straight line AB known as the budget line. तो budget line अगर आपसे पूछी जाएगी तो budget line is only downward sloping curve. Okay. Now, budget line or price line. Okay, in the budget line, while the budget set is OAB, यानी कि O is where here, O आपका ये आ गया. Then A आपका कहाँ पे है? That is the A is here and B is what? B is this one. Okay. Now every point on this budget line indicates those bundles of apples and bananas which the consumer can purchase by spending his entire income. जहाँ पे पूरी income आपकी spend कर दी गई, that is the budget line and the given prices of goods. Now budget line के क्या important points है? Budget line that is always slopes downward. Okay, as one or more of a one good can be bought by decreasing. एक को जो है खरीदने के लिए आपको दूसरे का सैक्रिफाइस करना पड़ता है, राइट. दूसरे का प्रोडक्ट जो आपको कमोडिटी कम करनी पड़ती है. बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू कंज्यूमर्स इनकम, मनी इनकम, लाइक कॉम्बिनेशन ई लाई ऑन द बजट लाइन. तो ये कॉम्बिनेशन आपका दिखाता है जो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे लाई करता है. बंडल्स विच कॉस्ट लेस देन कंज्यूमर मनी इनकम लाइक कॉम्बिनेशन डी शोज अंडर स्पेंडिंग, दे लाई इनसाइड द बजट लाइन. तो अगर कोई पॉइंट आपका इसके अंदर आ रहा है, दैट इज नोन एज द बजट लाइन, आपका जहां पे पूरा बजट खर्च नहीं हुआ है, एंड दैट इज नोन विल बी द बजट सेट. ओके, अभी आपको बताया जाएगा. बंडल्स विच कॉस्ट मोर देन द कंज्यूमर इनकम
अब यहाँ पे वही आपको याद आया होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये उसी तरह का कुछ है अजम्पशंस अगर आपको याद रखने हैं कि जो भी पॉइंट इसके अंदर इट मींस द इनकम इज नॉट टोटली स्पेंड। यहाँ पे क्या है अनअटेनेबल है कि यहाँ पे इतना ज्यादा इसका खर्चा है कि दैट हिज इनकम इज लेस देन द एक्सपेंडिचर एंड ही कैन नॉट स्पेंड और ही कैन नॉट अफोर्ड दैट। ओके, तो ये सी अनअटेबल पॉइंट हो गया। ओके, तो यहीं पे ये चीज बताई गई आर नॉट अवेलेबल टू द कंज्यूमर, दे लाई आउटसाइड द बजट लाइन। ये आपकी बजट लाइन है डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो इफ द क्वेश्चन इज आज आपने सीधे सिंपल बजट लाइन का आपको वो बताना है मीनिंग एंड देन दिस डायग्राम इट्स सफिशिएंट। ओके, एंड पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन इज मनी, मनी m is for money is equals to price of commodity A या apples कर लो into quantity A, that is the quantity of apples, plus price of bananas into quantity of bananas each. Okay, so here is the algebraic expression of this equation. All points on the budget line AB indicate those bundles which cost exactly equal to m, that is income के बराबर होना चाहिए. Okay, the main criteria is this. Now let's see here डिफरेंस बिटवीन बजट लाइन एंड बजट सेट। देखो बजट लाइन तो ये हो गया कि एग्जैक्टली इनकम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और बजट सेट क्या होता है विद इन द इनकम और एग्जैक्टली द इनकम। ओके, सो बजट लाइन इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम एट द गिवन प्राइसेस, एंड बजट सेट इज व्हाट इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल बंडल्स व्हिच कॉस्ट लेस देन और इक्वल टू कंज्यूमर्स मनी इनकम एट द गिवन प्राइसेस। ओके, आई होप इट्स नाउ इट्स क्लियर। द बंडल्स ऑफ द बजट लाइन ओनली ऑन द बजट लाइन। ठीक है, तो बंडल्स जो भी आपके दिखा रहे कॉम्बिनेशन वो बजट लाइन के ऊपर ही होंगे ना। जो बंडल्स होते हैं बजट सेट के या तो वो आपके ऊपर हो सकते हैं, मतलब जैसे सी अनअटेनेबल चला गया, सॉरी सेट लाइन इधर ऑन और बिलो द बजट लाइन, यानी कि या तो वो एग्जैक्टली बजट लाइन के ऊपर आ जाएंगे जो आपके बंडल्स होंगे, या वो आपने जो दिखाया था कि ये वाला डायग्राम था ना डी पॉइंट और इधर ऑन दिस पॉइंट दैट इज द बजट सेट। ओके, नाउ बजट लाइन इज एक्सप्रेस्ड एज, ये ऐसे एक्सप्रेस करता है इट इज इक्विवेलेंट टू मनी होता है, इक्विवेलेंट टू इनकम होता है, और इट कैन बी लेस देन और इक्विवेलेंट टू money income. Okay, now slope of the budget line, now you just need to learn the formula, that is units of bananas, that is the willing to sacrifice upon gain होना चाहिए। कितना आप sacrifice कर सकते हैं, need to be sacrificed each time to gain one commodity। सिंपल इसका मीनिंग ये है that is numerator will always have a negative value as it shows the number of units to be sacrificed। हमेशा sacrifice दिखाया जाएगा to get another you can say to time to gain one apple or one other commodity. Okay, it is not always apple or bananas, example अब जरूरी नहीं है। Now slope of budget line is denoted by market rate of exchange, that is MRE. So MRE is the rate at which one good is sacrificed in the market to obtain an extra unit of another good, that is marginal or market rate of exchange. Okay, now this slope is of the budget line is also known as price ratio of two goods। राइट ना, प्राइस रेशियो क्या होता है सिर्फ मीनिंग आपको पता होना चाहिए। प्राइस रेशियो इज द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ द गुड ऑन द वर्टिकल ऑफ वाई एक्सिस, यानी कि दोनों के प्राइस रेशियो क्या हो सकते हैं, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। सिंपल आपको ये पता चाहिए कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, एंड हॉरिजॉन्टल में जाहिर सी बात है आपको पता है हॉरिजॉन्टल ऑन एक्स एक्सिस और आपका y हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस। ओके, सो इट इज ऑलरेडी क्लियर नाउ। The y slope of budget line is represented by price ratio because here the number of bananas need to be sacrificed. Okay, तो हमेशा ये क्या बताया जाता है, if the consumer, यहाँ पे सिर्फ मेन लाइन ये समझ लेना, y slope of budget line is represented by price ratio। प्राइस रेशियो से ही क्यों बजट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, if the consumer wants to have one more unit of good one, okay, then he will have to give up some amount of good two, यानी कि एक वन मोर यूनिट बढ़ाने के लिए आपको दूसरे को सैक्रिफाइस करना ही करना है। द नंबर ऑफ बनानास नीडेड टू बी गिवन अप टू गेन वन एप्पल। ओके, इट मींस एक नंबर ऑफ कमोडिटी बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी को आपको डिक्रीज करना ही पड़ेगा। ओके, गेन एंड सैक्रिफाइस का ये काम होता रहेगा। नाउ लेट्स नाउ व्हाट वी कैन सी हियर, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। ना प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन का मतलब क्या होता है, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, आपने डायग्राम देखा ही था ना। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, एक आपने स्ट्रेट लाइन भी देखी, दैट इज द represented by the price ratio, as price ratio is constant throughout the budget line is a straight line. Okay, now let's see your shift in budget line। now shift in budget line दो तरह से हो सकती है, effect of change in the income of consumer।
या तो कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाएगी तो पूरी की पूरी वो शिफ्ट हो जाएगी, अगर इंक्रीज करेगी इनकम तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इफ द इनकम इंक्रीजेस देन द होल बजट लाइन ऑफ बोथ द कमोडिटीज विल शिफ्ट टू द राइट, दैट इज बजट लाइन शिफ्ट टू द राइट फ्रॉम ए बी टू A1 B1 ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। होता है ना, ये बजट लाइन थी डाउनवर्ड स्लोपिंग का, ये पूरी की पूरी शिफ्ट कर जाएगी व्हेन इट इज अ केस ऑफ इंक्रीज इन इनकम। एंड उसका जस्ट ऑपोजिट होगा इफ देयर इज अ डिक्रीज इन इनकम, जब इनकम डिक्रीज करेगी तो दोनों की कमोडिटीज का क्या होगा, बजट लाइन डिक्रीज कर जाएगी, दैट इज इन द लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ओके, सो दैट इज ऑलरेडी जस्ट उसमें उन्होंने लिख दिया है, आपको बस मेन ये चीज पढ़ लोगे और ये डायग्राम बना लोगे, इट्स सफिशिएंट। ओके, नाउ डिक्रीज इनकम आपने बता दिया मैंने। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्राइसेस। नाउ पहला इफेक्ट क्या था आपका, कि पहले इफेक्ट में ये बताया गया प्रॉपर शिफ्ट इन बजट लाइन, इधर द फर्स्ट केस में हो सकता है कि द इनकम चेंजेस। ओके, इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम। सेकंड केस में क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। या तो अगर क्या होगा आपका, चेंज इन प्राइसेस ऑफ बोथ द कमोडिटीज, अगर दोनों की कमोडिटी के प्राइस चेंज हो रहा है, इनकम नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, व्हेन द प्राइस ऑफ बोथ गुड्स चेंज देन द बजट लाइन विल शिफ्ट। बजट लाइन शिफ्ट होगी जब दोनों कमोडिटीज के अगर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, अगर चेंज हो रहा है। फॉल इन प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स, अगर प्राइसेस दोनों गुड्स के फॉल कर गए, कम हो गए, इट विल लीड टू अ राइटवर्ड शिफ्ट। प्राइसेस कम होंगे तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, राइट, तो दोनों क्या करेंगे, राइट पे शिफ्ट कर जाएंगे। ओके, और इन केस ऑन द अदर हैंड अ rise in the price of both the goods will result in the leftward shift। ठीक है, if there is a change in price of both the commodities, remember this। now if suppose, थर्ड सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस दैट इज एप्पल्स, इफ देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ ओनली कमोडिटी एप्पल्स, सिर्फ एप्पल्स में चेंज हो रहा है और बनाना में कांस्टेंट है, उसके कोई प्राइस पे इफेक्ट नहीं हुआ है, तो व्हेन द प्राइस ऑफ एप्पल्स फॉल, जब फॉल करेगा तो क्या होगा, देन द न्यू बजट लाइन विल रोटेट टू द राइट, यानी कि जब फॉल होगा तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, राइट, टू द राइट। द न्यू बजट लाइन meets the x axis y axis at the same point b, यानी कि b में कोई चेंज नहीं हुआ है और राइट में किस में बढ़ना है, एप्पल का, क्योंकि एप्पल का फॉल कर रहा है, राइट, और जब एप्पल का फॉल नहीं करेगा तो क्या होगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। सिंपल, आपको बस ये बजट लाइन रोटेट्स टू द लेफ्ट फ्रॉम ए बी टू A2B ड्यू टू द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एप्पल्स। बस आपको इतना लिखना है कि बजट लाइन रोटेट्स टू द राइट, ओके, rotates to the right when the apples price due to decrease in the price of apples, and budget line rotates to the left from AB to A2B due to increase in the price of apples। गॉट इट हियर, इसको बस यही एग्जाम्पल मेन आपको बस ये समझ में आना चाहिए एंड देन यू कैन इजिली ड्रॉ द डायग्राम। बी कांस्टेंट इसलिए कि बनानास के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आया ना। फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इस पे बनानास है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं और एप्पल आपका कांस्टेंट है, तो एप्पल में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, बजट लाइन, ये बजट लाइन है ना आपकी, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ही रहेगी, ये आपकी राइट पे शिफ्ट हो रही है ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ बनानास, तो ये बढ़ रही है इसकी डिमांड, एंड एज द प्राइस ऑफ द बनानास इंक्रीजेस, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और रोटेट करेगी ये लेफ्ट पे। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर नाउ, यू कैन गो थ्रू दीज। इसको ज्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इट्स बेटर टू रीड दीज थिंग्स बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू राइट दिस यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स एंड विद द डायग्राम। ओके, तो इससे आपको ज्यादा आसान रहेगा एंड यू विल बी एबल टू learn it easily also। Now in the next class we are going to start consumers equilibrium by indifference curve analysis, बहुत थोड़ा सा इसमें बचा है and we will try to complete it in the next video। Okay, then we will do the summary and then the practical questions। I hope you like it, please like, share and subscribe my channel। Thank you for watching।